Anything more? So the second thing is the time shifting property. So as per the first one is the linearity property, this one, and the second one is the time shifting. As per the time shifting property, if xt, all this property is useful to us only when we have already have a Fourier transform of the first one. If we have a Fourier transform of a xt signal, then only we can use the time shifting property of this for the another signal. So if we have a Fourier transform of the xt signal, and if there is a shifting in that signal as xt, and we want to the Fourier transform of the that shifted signal, then that will be equal to x omega e to the power minus j omega t naught. Okay, so this is our time shifting property, and this is very much useful. The shifting property is very much useful when you go through the objective type question, MCQ question, any competitive examination. Because a number of times direct questions comes from this shifting property. This shifting, not shifting property, this properties of a Fourier transform. Now comes the frequency shifting property of the Fourier transform. So as per the frequency shifting property, if xt Fourier transform is equal to x omega, then xt e to the power j omega naught t is equal to x omega minus omega. So this is the frequency shifting property. Excuse me, student. Hello? Hello? Taking class? Again, resume. This is the frequency shifting property. And then one is the time and frequency scaling. Already you have a knowledge ki what happens to the signal when it is frequency shifted, time shifted. So we can have this. If xt is give x omega, then when scaling it done, x80, then of course, as you already know, that it will be on the denominator side, x omega pi. So this will the property of a frequency and time and frequency scaling. Now the fifth property, that is the time reversal property. So as per the time reversal property, if xt gives x omega, then x of minus t will give x of minus 1. This is the time reversal property of a Fourier transform. Then the differentiation in time domain.
For example, if xt is gives x omega, then d of xt, d of dt of xt gives, already we are using this in the morning class, already we have done so. d of dt जहां भी रहेगा, that is replaced by j omega. Now, convolution property. So, as per this, if x1 t is x1 omega and x2 t is x2 omega, then when we take the convolution of this, that's why जो हम मॉर्निंग में डिफरेंशियल वो कर रहे थे एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स और आउटपुट रिस्पॉन्स का न्यूमेरिकल, वो हम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे थे. Then comes the multiplication property. As per this, if x1t is equal to x omega, x1 omega, and x2t is equal to x2 omega, then x1t, x2t will give 1 by 2 pi x1 omega conjugate x2. So these are the some of the properties of the Fourier transform. Let's look at some of the examples related to this. क्योंकि already हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, we have gone through. Let's do one example. Already we have done the numerical related to this. अगर आप किसी भी कोई इसका बता के दिखाओ करके. gt is equal to t to the power minus 80 ut. Please solve it using the property. Any one of you do it using the property of the Fourier transform. Who is going to do this? Shruti Singh, are you in the class? Yes, ma'am. Are you going to solve it, beta?
मैम कर रहे हैं सॉल्व। ओके, आपकी तबीयत ठीक है? मैम हल्की सी थोड़ी सी अच्छी खराब ही रहती है। क्या? मैम तबीयत खराब ही रहती है, उतनी सही नहीं रहती है। ध्यान दो अपना। उमेश पाल, he is on hold. Let's see how much time he remains in the hold. Utkarsh Goyal, are you in the class? Utkarsh Goyal, Yes, ma'am. are you solving this question, beta? Yes, ma'am. You have to solve it using what? Fourier transform properties. Utkarsh Srivastava. उत्कर्ष Yes, ma'am. श्रीवास्तव, हाँ, Yes. तो आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजना है अभी using the properties of the Fourier transform. So 3 student has to do this. First one is the Shruti Singh, second one is the Utkarsh Goyal, and the third one is the Utkarsh Srivastava. And the rest of you are also requested, if they are solving it, please share the answer. But these 3 students has to definitely share the answer. So क्या करना है हमें बेसिकली इसमें? We have a signal gt is equal to t to the power t e to the power minus at mu t. That means अगर हम कहें तो gt is equal to t of xt. ओके, और xt क्या है हमारा? What is xt? e to the power minus at mu t. So any one of you will please tell me what will be the convolution of Fourier transform of this xt? 1 upon a plus a plus j omega. 1 upon a plus j. Up. Now use the, which property can be used? कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इफ वी वांट द this one gt is equal to t of xt. Which property can be used? Have a look of the properties. ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, देख के बताइए. मैम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हो सकती है क्या? हाँ, स्केलिंग हो सकती है, बताइए कैसे कैसे होगी. ये हो जाएगा लाइक हम सिर्फ इसको करेंगे ना, एक्स ओमेगा को. बताइए. मैम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, जिसको जो लगता है प्रॉपर्टी यूज करो, आंसर मुझे चाहिए जिसको जो लगता है, पर मोस्ट इजीली इसमें डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज होगी. देखो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कहाँ चली गई हमारी, इसको देखोगे तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा. क्योंकि अभी एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को डिसाइड करने से पहले अगर आप देखोगे तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन,
apart from the topic. Okay. So if xt gives you x omega, then आपके पास क्या था? As per the, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं तो दिस विल बी इक्वल, तो हम इसको अगर बहुत प्रिसाइजली करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स टी, ये j आपका इधर चला जाएगा तो दिस विल बी j d x omega upon, so you can use this. This is a differentiation in frequency domain. This is also called as one of the property. Also, we can do the integration in frequency domain. इंटीग्रेशन की भी एक लगा सकते हैं. दिस इज xt, अगर आपका x ओमेगा है तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस इंफिनिटी टू t, तो दिस विल बी x ऑफ टाउ d टाउ and this will give 1 upon j omega x omega plus pi x 0 del omega. Actually, this property is a very complicated. This can be rarely used. ये बहुत रेयर यूज होता है. और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी तो हम डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन तो काफी यूज हो जाता है. So, what will be the answer? Back to the solution. Of course, ये फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी. तो who is going to tell me the answer? I've already told the name of a few students. So using the ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो what is going to happen to the signal? आप इसे देखो. अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं तो txt, so we can use directly this, we can use it or not. अब अगर txt है तो इसका कन्वोल्यूशन क्या होगा? its convolution, that is g omega, should be equal to j d x omega by d omega. So j d by d omega, x omega आपका ये है 1 by a plus j omega. What will be the differentiation of this? What will be the differentiation of this? Riya Bansal? 1 upon a plus j omega का होल स्क्वायर. J will be cancelled or ये not? मैम ये पूरा टोटल आंसर बताया मैंने. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. So this will be 1 upon a plus j omega का whole square. This is 100% correct. Okay. So you can have the value. और मतलब आप खुद देख रहे हो कि whenever you use the property, आपकी convolution का process easy हो जाता है. क्योंकि already e to the power minus 80 ut का क्या होगा for transform, Fourier transform. We have already known about it. So जब हम property use करते हैं तो हमारा easy हो जाता है calculation. तो चलो एक दो न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं. Only Shruti has said share the answer. Rest of the two, दो और कहाँ पे हैं? उनके आंसर्स अभी तक आए नहीं बेटा. प्लीज शेयर इट फास्ट.
मैम वो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी थोड़ा दिखा दीजिए इस कॉल करके। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ठीक है, देखती हूँ मैं, मेरे पास है अभी अवेलेबल, नहीं तो मैं कल नहीं कराऊंगी। मैम बस ये दिखा दीजिए, प्रॉपर्टी लिखना था। हाँ, ये लिखना था सब। ओके, इसके क्वेश्चंस को करने से ना बेटा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा इसमें यूज नहीं आते हैं, इसीलिए इसे हम कर नहीं रहे हैं अभी। अभी मैं देखती हूँ एक दो और प्रॉपर्टीज का करवाती हूँ आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने किया था, हो गया मैम। अब ये तो आप लोग करके दिखाओ कि अगर हम कोई सिग्नल है हमारा एक्स टी, ठीक है, उसका आपको सिग्नल है यूटी, यूटी सिग्नल है हमारा, और इसका आप निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म, बताइए। एक्स टी माइनस टी नॉट करके देखिए क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको प्रॉपर्टीज की, मैं शेयर कर दूंगी। आज मैं फोरियर सीरीज के आपके बुक बैंक शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की कल तक फिर शेयर कर दूंगी। तो इन दैट ऑल्सो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगी आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसमें आप प्रॉपर्टी के हेल्प से उसे कर सकोगे। एक दो क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेते हैं रैंडम। ये वाला करके देखना, ये तो बहुत सिंपल है, आपको करना है। एक ये न्यूमेरिकल हम करते हैं, जी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी साइन ओमेगा सी टी। आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो व्हाट विल यू डू, आपको इसमें दिख रहा है कि दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिग्नल। फर्स्ट है एक एक्सपोनेंशियली डीके सिग्नल, और दूसरा है एक सिनोसाइडल सिग्नल। ठीक है, अब आप इसे कह सकते हो, तो इसे लिख सकते हो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको हम एक सिग्नल मान लेते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टी साइन ओमेगा ओमेगा सी टी हो गया। अब हमें पता है एक्स टी इज अवर e to the power minus t ut, तो ऑफ कोर्स एक्स ओमेगा जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस j ओमेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब applying the what our
multiplication property. So when we applied the multiplication property, have a look at the multiplication property. x1t is x1 omega, x2t का x2 omega. तो दोनों का multiplication का 1/2 pi x1 omega and the x2 omega. So इसके लिए हमें इसका भी चाहिए कन्वोल्यूशन साइन ओमेगा टी का. तो कन्वोल्यूशन सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन साइन ओमेगा सी टी का होता है पाई बाय जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा. ये हमारा साइन ओमेगा सी टी का होता है. अब इसमें हम अप्लाई करें मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी. तो जी ओमेगा should be equal to 1/2 pi x omega convoluted to, of course, this one pi by j del omega minus omega c minus del omega plus omega c. So what will be the answer? This pi get cancelled. 1/2j x ओमेगा है तो आपका डेल के साथ मल्टीप्लाई करता है कोई भी फंक्शन. तो ऑलरेडी वी नो दैट दिस इज कंजुगेशन करते थे तो एग्जैक्टली वही आ जाता था. ये हमने ऑलरेडी कंजुगेशन में कर रखा है. कभी भी डेल के साथ हम करते हैं तो हमारा क्या आता है. ये हमारा उसी के थ्रू आ गया. तो ये हमारा आ गया हमारा कन्वोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द. तो इसको सॉल्व कर लो. क्या है हमारा x का वैल्यू क्या है 1 प्लस j ओमेगा. तो दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा माइनस ओमेगा c माइनस 1 बाय 1 प्लस j ओमेगा प्लस ओमेगा c. और इसको एक एक करके सॉल्व करो. 1/2j. अब 1 प्लस j ओमेगा प्लस j ओमेगा c माइनस 1 माइनस j ओमेगा प्लस j ओमेगा c. और नीचे आपका डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस j ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा c का स्क्वायर. आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो 1 प्लस j ओमेगा माइनस j ओमेगा c. कोई फॉर्म में भी लिख सकते हो. एंड दिस विल बी 1 प्लस j ओमेगा प्लस j ओमेगा c. ये हो जाएगा ना a माइनस b इंटू a प्लस b. डिनोमिनेटर में माइनस ओमेगा सी स्क्वायर नहीं होगा क्या बेटा वही कर रही हूँ ना यहाँ पे 1 प्लस हाँ, j. समझ गए. यस मैम यस मैम. हाँ वही तो मैं पूरा ही कर रही हूँ सॉल्व. आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो a प्लस j ओमेगा का होल स्क्वायर. और माइनस b स्क्वायर की जगह क्या होगा माइनस j ओमेगा का स्क्वायर. j ओमेगा फिर से माइनस ओमेगा c स्क्वायर हो जाएगा है ना. दिस विल बी प्लस ओमेगा c. एनी डाउट. किसी को कोई डाउट है. बोलो जल्दी बोलो टाइम कम हो रहा है बेटा. नो मैम. दिस विल बी आपका ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 1/2j into
j omega c, 2j cancel, 1 plus j omega का square plus omega c का square. So the final result is j omega c upon 1 plus j omega square plus. अब इसमें आपको करना क्या है, जब भी इस तरह का जो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जो जनरल आपके रिजल्ट्स होते हैं, जैसे साइन है, कॉस है, एक्सपोनेंशियल है, फिर आपका यूनिट स्टेप है, इम्पल्स सिग्नल है, तो उसके साथ में ही आते हैं. तो एक जगह आप लोगों को नोट डाउन करके रख लेना पड़ेगा कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है. देन ओनली दिस प्रॉपर्टी कैन बी बेनिफिशियल. मैं जो आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म के नोट्स भेजूंगी तो उसमें वो चीज मैं लिख के भेज दूंगी, जनरल सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होंगे. ओके, समझ में आई आप लोगों को? एनी डाउट इन दिस लेक्चर? नो मैम. उत्कर्ष गोयल ने आंसर शेयर नहीं किया है. बाय उत्कर्ष. हम कर दिया मैम. मुझे उत्कर्ष श्रीवास्तव के दिख रहे हैं बेटा, उत्कर्ष गोयल के नहीं दिख रहे हैं. मैम व्हाट्सएप किया था मैम आपको. ओहो, व्हाट्सएप किया था बेटा, सॉरी, मैं तो देखती नहीं हूँ व्हाट्सएप बेसिकली. कोई नहीं, ठीक. चलो, okay, you can leave the meeting now. We will again start tomorrow. We will start the DTFT. Now you can leave the meeting.